ओके, वी आर ऑन। सो नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट नीलिना दास आपका हिंदी रंगमंच और भारत एफएम के नाट्य दर्पण में बहुत 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 स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं, सतर्क हैं और स्वच्छ हैं। अभी सतर्क और स्वच्छ होना बहुत बहुत ज़रूरी है ताकि आप सभी स्वस्थ रहें। इस महामारी ने हम सबको अपने घरों में बंद कर दिया है और जैसा कि हम सब जानते हैं कि काम करने को बहुत लिमिटेशंस हैं, बहुत कम हमारे पास अभी रिसोर्सेज हैं। लेकिन जो हमारे क्रिएटिव लोग होते हैं, वो हमेशा कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेते हैं कुछ ना कुछ करने का। आज हम आपको जिनसे मिला रहे हैं, एक बहुत ही क्रिएटिव अभिनेत्री, एक बहुत ही बचपन से जिन्होंने सबका मन, करोड़ों लोगों का मन जीता हुआ है, स्पेशली मेरा। मैं उनकी बचपन से बहुत बड़ी फैन रही हूँ और उनका सीरियल भारत एक खोज मैं हमेशा, हमारे यहाँ टीवी नहीं होता था और चोरी छुप के जाके कभी मिस नहीं करती थी। तो आज हम बात करने वाले हैं नन अदर देन मिसेस पल्लवी जोशी। नमस्कार मैम। नमस्कार, कैसी हैं आप? बस थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग विद अस एंड थैंक यू सो मच फॉर फाइंडिंग टाइम। आई नो यू आर सुपर बिजी एंड सुपर क्रिएटिव। No, no, we प्लीज always have टेल time अस। to connect with people. That's part of our job. यस ऑफ कोर्स, बट यू नो वो कनेक्टिविटी डिफरेंट होती है, राइट? जहाँ आपको मिलना होता है, काम के विषय में बात करनी होती है, हालांकि ये भी काम के विषय में ही है। बट हम थोड़ा सा जाएंगे पास्ट में। बचपन के बारे में बताइए। कैसे आपने थिएटर शुरू किया? व्हाट काइंड ऑफ pushed you into this? Not pushed you, I'm sure you happily came to this field. What brought you to this field? Melina, I'm the third generation of actors in the family. मेरी नानी जी जो थी, उन्होंने मराठी फिल्मों में काम शुरू किया था. Oh wow. When she was about 19 or 20 years old, she started acting. She has worked with the likes of V. Shantaram ji and Raja Paranspe ji and, all the top names of Marathi cinema back then. Oh wow. And then she started working with Bal Gandharv Natak Company. अच्छा अच्छा। And my father had, that time he had recently joined Gandharv Natak Company as a, whatever, as a small time actor, and he would do like bit parts here and there. And he and my nani met, and they kind of struck a friendship. And my nani always used to like him, and she always felt कि ये लड़का बहुत अच्छा है. हम्म। And she secretly, wished that somewhere that he, if he likes my daughter, I would like to have a son-in-law like him. Although she never expressed it. ओह And a अच्छा। few years, और इनका घर पे आना जाना बहुत था. And few years later, as coincidentally, he and my mother they fell in love, ओह and वाह। my nanny was like beyond ड्रीम। beyond happy with the match. And so they got married. My mother was she had done a master's in Hindustani classical music. ओह She was a वाह। singer. She used to sing for Akashvani, in her younger days. Then later she started composing for Marathi plays, and then she would also teach music. So ये जो म्यूजिक का जो पूरा एलिमेंट आया है हमारी लाइफ में, वो that's all because of her. ओह वंडरफुल, वाह। And then my father, of course, realized at a very young age, thankfully, that he doesn't have any, acting talent in him. But he was an excellent playwright. And then my father came to be known as a, as a playwright, and then he became a very successful producer in Marathi film, Marathi theater. हम्म। तो हमारे यहाँ पे थिएटर का एटमोस्फियर शुरू से रहा है. अच्छा अच्छा। Then my elder sister and her husband, they are both, from Marathi films and theater. हम्म। My elder brother Alamkar, who was very famously known as Master Alamkar. Yes, I remember, such Yeah. a cute little boy. So he's now, of course, in Washington D.C. Oh And really? yeah, Oh he's there for the past 30 years now. So after he grew up, he didn't do films anymore, really, हाँ। and he decided to shift base out of India. तो So ट्रैवल नहीं करते अभी जरा भी? अभी मतलब कैसे करेंगे वो अगर वहां रहेंगे तो?
पर जो दे से ना, एक कहावत है कि वंस एन एक्टर ऑलवेज एन एक्टर। हाँ, वो एक्टिंग बग तो तो काटता है ना अंदर से। हाँ, तो बचपन में उनको एक बहुत डर लगता था एक्टिंग करने में। उनको ये लगता था कि मैं पर्दे के पीछे जब चला जाऊँगा तो मैं बाहर कैसे निकल आऊँगा? तो So हम लोग cute. उनको हमेशा यही कहते हैं कि तुम बाहर निकले नहीं आप वहाँ से, अब वहीं अटके हो अभी भी। Yeah, no, तो he वो needs to come out. हाँ, अपनी क्रिएटिविटी कहीं-कहीं निकाल लेते हैं। वो ही इज़ एन एक्सीलेंट सिंगर, वेरी गुड गज़ल सिंगर। तो Oh, वो ही कीप्स सिंगिंग एंड यू नो वो अपना कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर्स चलाते रहते हैं, अपने शौक पूरे करते रहते हैं यूएस में। सो मैं बचपन में आई बेसिकली my parents are very keen that I act because I think they saw the spark in me, but I was very against doing films. पता hmm. नहीं मेरे कुछ ना, मैं 4-5 साल की थी, अकल भी नहीं थी तब। लेकिन कुछ एक नोशंस होते हैं ना आपके कि आप एक चीज़ को लेके आप एडमेंट हो गए। Hmm. तो मुझे आर्किटेक्ट बनना था तब। Oh, और मुझे बड़ा मज़ा आता था घर में चीज़ें चीज़ें सजाने में और कभी कहीं फ्लावर वास रख दिया, कभी कहीं कुछ कर दिया। एंड माय पेरेंट्स वर सो, आई मीन दे यूज्ड टू गेट सो अपसेट क्योंकि मैं घर का सारा चीज़ें यहाँ की वहाँ कर देती थी अपने डेकोरेशन के इसमें। बट बहरहाल एक बार ऐसा कुछ इंसिडेंट हो गया दैट देयर वाज़ अ क्राउड ऑफ पीपल हू सराउंडेड आवर कार एंड दे स्टार्टेड, they recognized my brother because he was a child star. hmm. तो सब लोग कहने लगे मास्टर अलंकार। एंड आई वाज लाइक हाउ रूड आर पीपल, आई मीन मैं बगल में बैठी हूँ, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट मी, एवरीवनस टॉकिंग अबाउट अलंकार। Yeah. So my father said, well, you have to act in films, you have to be famous, only then people will recognize you. तो जस्ट टू शो माय ब्रदर दैट आई एम नो लेस, मैंने वो पहली फिल्म अपनी करने के लिए मैंने हाँ कर दी। एंड देन दैट फर्स्ट एक्सपीरियंस इटसेल्फ वाज सो एन्जॉयबल दैट I never, looked back after that. And which movie was that? I think you were a blind child. Is that right? That was a film called, no, the film you're talking about is Dada, which came much later. Okay. But there was this bilingual film, it was called Raksha Bandhan in Hindi and Khamma Mara Veera in Gujarati. Okay. तो हिंदी में तो वो बहुत बुरी तरह पिट गई फिल्म, पर गुजराती में बहुत चली। गुजराती में सिल्वर जुबली हिट हो गई वो। Oh. And for that very first film of mine, I got the Best Child Actress award from the Gujarat government. Oh, wow. तो मतलब मैं तो फिर उसके बाद जो And how old were you that time? I was 5 years old. Wow. Oh my God. So लेकिन एक every कॉन्फिडेंस film आ that जाता I होगा ना? कॉन्फिडेंस तो मतलब ऐसा आया कि जो अलंकार को जो दिखाना था वो तो मतलब वो तो पूरी तरह दिखा दिया उसके बाद। Well, sometimes this rivalry is so good, right? कि आपको बहुत मदद करती है, right? Competition in the house. एब्सोल्युटली। मैं तो अगर इफ इट वाज़न्ट फॉर अलंकार आई डोंट थिंक आई वुड हैव यू नो ever thought of entering the film industry. And Wow. he's always been a very big source of inspiration for me. क्योंकि बचपन में वो जिस तरह का काम करते थे, जिस तरह से लोग उनको रिएक्ट करते थे, मतलब बाहर के लोग नहीं, फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी, Mhm. जिस तरह की रिस्पेक्ट थी उनकी। सो आई वाज ग्रेटली इन ऑफ हिम, आई स्टिल एम। Mhm. But back then it was more so because I was still, climbing the ladders, taking one step at a time, smaller steps. तो तब मुझे बहुत लगता था कि नहीं, I must achieve what my भाई brothers को पीछे छोड़ना है. achieved. That's such a beautiful story. I love childhood stories जो बचपन की होती है ना, जब भाई बहन आपस में लड़ते हैं, लेकिन वो बहुत हाँ, प्यार वाली लड़ाई होती है. It's हाँ, never हाँ, like mean लड़ाई. right. So आपकी जो फिर जो भारत एक खोज, was that your first serial or how did you That enter was into that? one of the earlier serials. Mm-hmm. My first serial was एक, आपको अगर याद होगा, दूरदर्शन पे एक कहानी नाम का एक सीरियल आया करता हाँ था। हाँ हाँ. तो उसका जो सबसे पहला एपिसोड टेलीकास्ट हुआ था, उसका नाम था जंगली बूटी। इट वाज अ वेरी स्वीट शॉर्ट स्टोरी बाय अमृता प्रीतम। अच्छा. तो वो मैंने किया था सबसे पहले। Okay. और उसके डायरेक्टर थे दयाल निलानी, गोविंद जी के छोटे भाई। And अच्छा. he used to work with Mr. Benegal as his, chief AD and then as his associate director. Mm-hmm.
So this being his first independent venture, he went and showed the episode to Mr. Benegal. And that's how he called me for my first film with him, which was called Susman. तो Okay. वहां से फिर मेरा मतलब एक वो होता है ना, आप जब 16-17 साल के होते हैं, आप जिनके साथ काम करते हैं, हम्म, तो उनके साथ बात हो आप वही राह आपकी हो जाती है, क्योंकि वो इतना इम्प्रेशनेबल एज होती है वो। तो राइट। मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे श्याम बेनेगल ने बुलाया, उसकी जगह अगर मुझे रमेश सिप्पी जी ने बुलाया होता तो शायद आज मैं कहीं और होती, मैं कुछ और सोचती, मैं कुछ अलग किस्म की किताबें पढ़ रही होती, you know. So it's all, I think it's all destined how, you know, Yeah. like what course your life is going Ambedkar to ji is take such and a, what will change. but I'm sorry to interrupt, but Shyam Benegal ji is such a great director, and I mean, मुझे उनकी सारी films, especially of course commercial movies or art Yeah. movies में अगर हम discussion करें तो it's a different thing, but I always loved his work. I mean, the way he represented Bharat Ek Khoj. Extremely, he's an extremely, yeah, Yeah. very, very sensitive director, and he's such a simple man, you know. So अच्छा. when I went to meet him for the first time, मैं कुछ 16 ही साल की थी मेरे ख्याल से, and I went to his office with stars in my eyes, and my meeting lasted for 20 minutes with him. अच्छा. No, what 20 minutes? 10 minutes. 20 मिनट में तो मैं उस ऑफिस से भी बाहर निकल गई थी। तो ऑडिशन वगैरह कुछ नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी कर चुकी थी मूवीज वगैरह? उस जमाने में ऑडिशंस इतने हुआ नहीं करते थे। अच्छा। तो और खासकर मतलब बिल्कुल ही अगर आपको कोई कमर्शियल फिल्म है और आपको एज अ हीरोइन या एज अ हीरो कोई कास्ट कर रहा है और आपके ऊपर मतलब लाखों का वो खेल होना है अगर, तो मेरे ख्याल से फिर वो ऑडिशंस वगैरह होते थे, लेकिन नॉर्मल फिल्मों में नहीं होते थे ऐसे। और आर्ट फिल्मों में तो बजट से इतने कम होते थे कि उसमें ऑडिशन का खर्चा कहाँ करें। And then Mr. Benegal always worked. And he always worked with the best of actors. You know, he always worked with Om Puri and Nasiruddin Shah and Shabana Azmi and Smita Patil and Pankaj Kapoor and Anu Kapoor and who you may have, you know. Yeah. तो एक आध उनमें से ऐसा कोई थोड़ा सा लंगड़ा घोड़ा निकल भी गया तो बाकी लोग संभाल लेते हैं। तो इसलिए तब ऑडिशंस भी नहीं हुआ करते थे। But they are all so powerful actors, so and I think these actors, including you, they don't work for money, right? It's more for the passion, it's more for satisfaction of doing something creative, right? So Right. that's wonderful. आपका एक और एक जो मूवी में मेरी एक फ्रेंड पूछ रही थी, कस्तूरबा गांधी का आपने रोल किया था. How old were you and how was your experience in that as Ba? I think I must have been about 23, 24 years old. Oh, that's all. Yeah. And because the story was about the younger days of Mahatma Gandhi. Okay. When he reached South Africa. So the movie was called Making of the Mahatma. तो वो जब महात्मा बने नहीं है, इस फिल्म के आखिर में उनको महात्मा की उपाधि दी जाती है, लोग कहने लगते हैं महात्मा। अच्छा। तो जो सारा यंग पोर्शन था उनकी लाइफ का, तो एसेंशियली जहाँ पे जो अटेनबरो ने जो गांधी बनाई थी, वो जहाँ से शुरू होती है फिल्म, दैट्स वेयर दिस फिल्म एंडेड। Okay. So उनकी previous kind of life जो उनकी. हाँ, so it was about their younger life. I had to age, of course, but I didn't have to like go to like 70, 75 years old, like रोहिणी जी ने। मेरा 40, 45, 50 साल की उम्र तक एजिंग थी उसमें। But the coincidence was that Kasturba Gandhi and I we share the same birth year with 100 years apart, you know. Oh my God. तो वो मुझसे exactly 100 साल पहले पैदा हुई। Oh my God, what a coincidence. It's a huge coincidence. And उसके बाद हम लोग गए थे जब वहाँ पे 1995 में we went and shot the film. हाँ, 95 में we shot the film. 1895 में कस्तूरबा गांधी पहली बार साउथ अफ्रीका गई। Oh my God, that's a huge coincidence. मतलब मैं तो सुन के मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे उसके बाद। So you were made for that role, right? I don't know about that, but stars जुड़े. yeah, this coincidence was too much to ignore, you know, that time.
Yeah, I have to watch that movie, to be honest. I want to share one thing with you. I was born on 2nd October. So Oh, I share really? my birthday, yeah, with Oh, Mahatma. sorry to cut you, but there was one more thing. I'm born on the 4th of April. But Kasturba Gandhi was born in April, not on the 4th, but in April too. Taran, So huh? we're exactly 100 years apart in everything that we did. I just got married late. I didn't get married as early as she did. That's all. So you were not born that time. तो या इसीलिए मैं हमेशा, क्योंकि बचपन से मुझे कहते थे गांधी जी, तो मैं हमेशा गांधी जी की मूवीज देखती नहीं थी, क्योंकि पता नहीं हाँ, मुझसे एक एक्सपेक्टेशंस बंधी हुई थी सबकी, और मैं बिल्कुल ऑपोजिट थी। मुझे कोई गांधी जी का था कि एक कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल दिखा दो, तो मैं तो 4 मारने वालों में से थी। तो I was like shying away, भाई please don't compare me with such a great human being, and गांधी जी ने तो ये मैं ह्यूमैनिटी के लिए कहा था, औरतों के लिए नहीं कहा था, तो आप बिल्कुल चार मार सकते हैं। बहुत मारे हैं डीटीसी बसेस में दिल्ली में, तो उफ कितना हंगामा करती थी। मुझे मेरे फ्रेंड्स कहते थे गुंडी को साथ ले जाओ, अच्छा। इसको सेट कर देगी, एंड मैं कहा कोई हाथ लगा के दिखाए, दूर से देखना है देखो, आंखें दी हैं भगवान ने, घूरो जितना घूरना है, पास बताना बस। बट एनीवे, वी गोइंग ऑफ टॉपिक। Sorry, my boys are Yeah, also that's talking to you, and you're used to it, right? So आपका एक और जो आपने अंताक्षरी में भी अनु कपूर जी को उनके साथ एंकरिंग की थी, how was that experience? oh, that was one of the most wonderful experiences of my life. Because एक तो बचपन से मेरी माँ जो थी वो मुझे सिंगर बनाना चाहती थी। अच्छा। मैंने ऐसा सुना है कि मैं बहुत ऊंचा गाती थी बचपन में। हम्म। तो माय मदर वाज लाइक कि तुम्हारा सुर भी बहुत ऊंचा है एंड यू गॉट एन आइडियल वॉइस फॉर प्लेबैक सिंगिंग। तो और तब श्रिल भी थी काफी आवाज, अभी तो बहुत हस्की हो गई है, लेकिन तब बहुत श्रिल थी मेरी आवाज। अच्छा। और माय मदर सेड दिस इज, ये तो माइक क्वालिटी की है तुम्हारी आवाज, तुमको तो सिंगर ही I बनना है। agree with her though. और और उन्होंने जितनी कोशिशें की मुझे गाना सिखाने की, मैं उतना ही भागती थी गाने से। क्योंकि जब आप छोटे होते हो और आपको पता है कि आपकी माँ ही सिखा रही है, तो वो उस तरह का कुछ डर नहीं होता आपके मन में कि अरे गुरुजी हैं और डांट Right. देंगे या मार देंगे, वो एक तो वो था नहीं। दूसरी बात, जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है, उसके लिए आपको थोड़ा-सा मैच्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज़ वो कभी-कभी मुझे ऐसा लगता था कि क्या रोंदू-रोंदू गाने सिखा रही हो मुझे, मुझे नहीं कर, मुझे कुछ टीच मी सम हैप्पी सॉन्ग्स। अब वो सारा राग बेस्ड है अगर, तो उसमें तो वो यू नो Right. करुणा तो आती ही है उसमें, हर उसके राग में। तो मैं बहुत वो करती थी, फिर कोई लोड तकिए लेके सीखते-सीखते मैं उसकी सितार बना लेती थी, फिर उसकी गिटार बनती थी। फिर बीच में मैं गाने का रॉक कुछ फ्यूजन बना के गाने लगती थी, एंड देन माय मदर वुड से गेट आउट, आई डोंट वांट टू टीच यू। फिर दूसरे दिन वापस पकड़ के बिठाती थी। So when I did Antakshari, she was happy in a way that somewhere, You're seeing and action. yeah, and because of Antakshari, जब भी उसके शेड्यूल्स होते थे तो उस शेड्यूल के पहले थोड़ा सा मैं प्रैक्टिस के लिए बैठ जाती थी। So that was a very happy time for her कि चलो कुछ तो कर रही है रियाज गाने का बैठ के। Yeah. So माओ she को was, होता है कि उनका बच्चा, एक बच्चा तो कुछ ना कुछ उनके जैसा करे, राइट? हाँ, उससे उनको करेक्ट, बहुत सेटिस्फैक्शन मिलती है। हाँ। तो आपने वैसे क्लासिकल म्यूजिक सीखा है? हाँ, बचपन में हमको सिखाया, मतलब कुछ हमारे पास चॉइस ही नहीं थी। बट टुडे आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो ग्लैड दैट वो जो भी हमारे कान पकड़ के बिठाए माँ ने हमें, तो हम्म। उसकी वजह से ऑल ऑफ अस, हम 3 भाई-बहन हैं, हम तीनों में म्यूज़िक आ गया है। और हम वंडरफुल। मिलते हैं तो एंड नॉट जस्ट अस, माय मदर्स सिस्टर, हम्म। सो माय नानी जी हैड ओनली 2 डॉटर्स, माय मदर एंड माय मासी। तो उनके दोनों बच्चे भी बहुत अच्छा गाते हैं। इनफैक्ट उनकी बेटी तो सिखाती है, वो सुरेश वाडकर जी के यहाँ गाना सिखाती है। एंड ओह। हर हस्बैंड इज अ वेरी वेरी बिग नेम, इज अ वेरी बिग सिंगर इन मराठी फिल्म्स टुडे। ही इज डन म्यूजिक फॉर अ कपल ऑफ माय प्रोजेक्ट्स आल्सो। ओह वंडरफुल। तो हम लोग जब भी मिलते हैं कभी-कभी कुछ
हो ही जाती है महफिल, हम गाने गाने ही लगते हैं. Oh, wonderful. It's I mean the siblings coming together is a great joyous time for us. And I think music has such a एक एक ऐसी बाइंडिंग उसमें होती है कि कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी आप कहीं भी रहते हो, आपको म्यूजिक हमेशा जोड़ ही देता है. बिल्कुल, बिल्कुल. और और एक खासकर, एक्टर. हाँ, खासकर अगर आपको गाना आता है, आप हम्म. गाना गा सकते हैं, तो माय मदर ऑलवेज़ यूज्ड टू से कि कितना भी गुबार भरा हो आपके मन में, हम्म. अगर आपको लगता है कि कुछ आउटलेट नहीं मिल रहा है आपको, तो हम्म. तानपुरा लेके बैठो, सुर छेड़ने लगो, जो भी अंदर है सब निकल जाएगा अपने आप बाहर. Oh my God, that's so true. Yes. शी वुड ऑलवेज से दैट, एंड इट्स रियली ट्रू. मैं जब भी, बहुत मौका लगता नहीं है ऐसा क्योंकि बिजी होती है लाइफ, लेकिन when you have your moments when you're feeling a little low or down or you don't know what to do, तो मैं अपना गाने लगती हूँ उस वक्त. एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे गाती हूँ मैं. इवन माय फैमिली नोज कि अभी इसको छोड़ दो अकेले. Don't disturb her. And then once I'm done, then I come out with a smile, because Yes. I think everything म्यूजिक has so much लोग समझ नहीं पाते कि म्यूजिक में हर इमोशंस के साथ, एक तो हमारे फिल्मों में हर इमोशंस के गाने बने हैं. आप is. भक्ति रस की बात करें, वात्सल्य रस की बात करें, सब में गाने हैं. तो जो भी आप, कल मेरी जैसे बेटी का बर्थडे था और मैं उसको जब सुलाती थी उसके लिए गाती थी मेरे घर आई एक नन्ही परी. So I was now she's of course older, she doesn't live with me anymore. तो गाते गाते मैं रो रही थी. तो मेरे हस्बैंड कहते थे तुम रो क्यों रही हो? मैंने कहा आई डोंट नो, वो बचपन उसका याद आ रहा है कि जब उसको सुलाती थी. एंड टुडे शी इज अ म्यूजिक मेजर which makes me feel so proud कि That's wonderful. या शी वो गाना गाती है, उसने ओडिसी डांस वगैरह भी सीखा. सो जो मैं सीखना चाहती थी बचपन में वो सब उसको सिखाती है. But I must tell you a funny thing. In spite of being trained in vocal music and whatever, every time I tried to sing to my kids when they were small, they would start crying. I never managed to sing them any loris or anything. My husband would finally tell me, "क्यों torture कर रही हो उनको, वो रोए जा रहे हैं तुम्हारी लोरी सुन के." Maybe because you were tired also. You No, needed no, somebody for you to. no. Even today, even when I start singing, they are like, "Mama, please go to the other room." They just don't like me singing. Period. Like, बट बच्चे बहुत जब छोटे होते हैं ना इतने मासूम और क्रिटिकल होते होते हैं अपने पेरेंट्स के बारे में. मेरे बच्चे भी अब मेरी बेटी मुझे बताती है नहीं माम वो ना ऑफ जा रहा है, हल्का सा ऑफ जा रहा है. एंड आई रियली लाइक इट कि हाँ. ये मेरा बच्चा करेक्ट कर रहा है. जिंदगी भर हम उनको करेक्ट करते हैं, आज वो हमें करेक्ट कर रहे हैं. सो इट्स अ ग्रेट फीलिंग. नाउ और भी मेरे एक फ्रेंड हैं श्रीनिवास जोशी जो मेरे साथ काफी एक्टिंग करते हैं. उन्होंने एक सवाल पूछा था कि आप मैं तो मराठी नहीं जानती बट मेरे बहुत मराठी फ्रेंड्स हैं यहाँ. आपने सारे गामा पा में भी एंकरिंग करी थी इन द मराठी सारे गामा पा. So he was wondering about that. How did that come and how did you feel about it? Again, I think with your mom it's related, right? Yeah, but fortunately, देखिए अंताक्षरी में कैसा था, इट वाज अ गेम शो. Right. तो हमको ओपनिंग का गाना हमें गाना पड़ता था, एंडिंग का गाना हमें गाना पड़ता था और बीच में एक क्यू का गाना. तो हर एपिसोड में 3 गाने होस्ट और होस्टेस के होते ही थे. तो कभी अनु जी गा लेते थे गाना सोलो, कभी मैं गा लेती थी, कभी हम डुएट गा लेते थे. तो मतलब 1.5 गाना आप समझ लीजिए हर एक के हिस्से आता ही था हर एपिसोड में. तो हम लोग 52 एपिसोड होते थे हर साल के. और ऐसे कुछ 7-8 साल मैंने, तकरीबन 8 साल मैंने अंताक्षरी किया. Oh wow. So, मुझे काफ़ी गाने मैंने गा लिए, मतलब एक साल में ही कुछ 65-70 गाने तो हो ही जाते थे हमारे. Wow. और उसके अलावा भी कहीं एपिसोड की लेंथ कम पड़ रही है, कुछ हो रहा है तो हमारे एक्स्ट्रा गाने डाल देते थे. फिलर जैसे. हाँ. हाँ, तो उसमें ये था कि उसमें एक मस्ती का माहौल बना के रखना था हमें. तो Right. कभी-कभी हम लोग बहुत अच्छे सुरीले गाने भी गा लेते थे खुद के लिए, लेकिन ज़्यादातर ऑडियंस के लिए वी हैड टू सिंग लाइक peppy numbers and popular numbers which were on the top charts. सारेगामापा का ये है कि दिस इज़ अ टैलेंट हंट प्रोग्राम. Right.
तो इसमें आप गाने के नॉलेज की वजह से आपको पॉइंट्स नहीं मिलने वाले हैं, आपकी गायकी की वजह से पॉइंट्स मिलने वाले हैं। तो आपके एग्जैक्ट। अंदर जो टैलेंट है उसकी वजह से आपको मिलेगा। हम्म। सो इट डजंट मैटर इफ यू डोंट नो टू मेनी सॉन्ग्स, आप रिहर्सल करो उसकी। हम्म। हमारे म्यूजिक डायरेक्टर्स रहते थे वहाँ बाकायदा, वो रिहर्सल्स करवाते थे पूरे हफ्ते की, और वो हफ्ते के आखिर में जाके परफॉर्म करते थे। सो द onus of entertaining the audience was not there in Saregama because it was a more serious type of हाँ। program. उसमें भी करते थे हम लोग, we used to create light moments of course, because at the end of the day it's an audio visual medium, so you know Right. you have to keep the audience smiling also. Right. And also So competitors must be also stressed out, right? Competing with each other. they sometimes they're very nervous because उनके हर गाने के बाद सामने से judges comment करेंगे. Hmm. So I mean, you know, it's a very weird feeling if you're going to stand there and you're going to be judged every second of your song. कि अरे मेरा ये सुर तो ठीक नहीं लगा, ये तो मैंने बीट से थोड़ा फास्ट तो नहीं गा दिया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें उनके दिमाग में चलती हैं, तो उनको रिलैक्स करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है एंकर की। So Wow. I used to do that, and Saregama was I mean, we had great times, you know, doing that show. But if you really ask me what I enjoyed the most, it was Antakshari. क्योंकि अंताक्षरी में हम लोग बहुत घूमे हैं. We have gone to different places to shoot the schedules. हमारे एक शेड्यूल में 15 से 17 एपिसोड होते थे. Oh, हमने wow. दुबई में शूट किया है, हमने बहरीन में शूट किया है, हमने लंदन में शूट किया है, हमने यूएस में शूट किया है, हमने ताजमहल के सामने शूट किया, हमने विक्टोरिया मेमोरियल के सामने जाके शूट Oh, किया, wow. कोलकाता में हमने गंगा किनारे शूट किया है, बनारस में हमने बीएचयू यूनिवर्सिटी में हमारा एक सेट लगा हुआ था। तो हम इतना घूमे हैं अंताक्षरी के साथ, एंड एट डिफरेंट प्लेसेस वी हैड डिफरेंट ऑडियंसेस, and it was a very interactive program. So I mean, it was on some different level altogether, and plus you got to sing, you know, to your heart's content, Yeah. which is also another plus there. So and also I was younger, you know, when I had done Antakshari, so Uh, of course there was more energy and I was more buoyant then. right. By the time I started doing Saregama, the kids had come along. I was married. Mm-hmm. तो एक वो वहाँ पे जो जिस Responsibility. अथॉरिटी की उस प्रोग्राम के लिए ज़रूरत थी, वो थी मुझ में उस वक़्त। सो Right. इसलिए वो प्रोग्राम भी निभ गया अच्छे से। एंड इट वाज़ अ ह्यूजली पॉपुलर प्रोग्राम। आई मीन फॉर द नॉन-मराठीज़, आई वुड लाइक टू से हियर दैट एक नॉर्मल जो सीरियल्स होते हैं, उनकी टीआरपी कुछ 2.3, 2.5, 1.9 ऐसी होती है। सारेगामापा की टीआरपी यूज्ड टू बी लाइक 7, Wow. 8 ऐसी टीआरपी मिलती थी उसको. Yeah, So it was even the Hindi Antakshari was so good. I loved it. I think Antakshari was one of my favorite. वो चित्रहार अंताक्षरी, I think because I love music, so ये सारे, और अंताक्षरी हमारे कॉलेज में भी खेला करते थे, so we all used to copy your styles. So it's such a, I don't know why they stopped it. They should remake it and they get you should guys make it. back. In fact, I met with the maker Gajendra Singh a few days ago, and we अच्छा. were talking about this. I said you should get a younger couple now, and you should restart Antakshari because everyone, you know, even I Oh, would like to watch that show again. yeah, I think Antakshari was so famous and it was one of the best shows and it was relaxing, you know. Of course, आजकल के soaps इतने सारे channels हो गए हैं. ये भी actually मैं आपसे एक सवाल पूछने वाली थी कि इतने सारे channels हैं. फिर Netflix में TV movie shows आ रहे हैं, Amazon पे आ रहे हैं. So it's great for the actors, I think, because they're all getting, you know, to be exposed to all this. But isn't it some way we are losing the what do you call the soul of the work, or the soul of the spirit is somewhere we're losing? No, I don't think we are losing the spirit. In fact, people are more enthused uh, making new shows for, especially for OTT platforms. We have some wonderful shows coming up. कुछ एक बहुत ही रद्दी बनते हैं, लेकिन कुछ एक वाकई में बहुत अच्छे शोज बनते हैं. बट हाँ, एक बात तो ये है कि जब वो
गुड ओल्ड दूरदर्शन डेज, वो जब जमाना था, हाँ, जब प्राइम टाइम 9 बजे शुरू हो जाता था और 10:30 बजे खत्म हो जाता था, 1.5 घंटे का प्राइम टाइम हुआ करता था। पूरा दिन इंतजार रहता था उसका। पूरा दिन रहता था, हम रात को, और वो सीरियल्स लाइक करमचंद एंड भारत एक खोज, भारत मिडनाइट, एक हम्म, उड़ान, महाभारत भी उसी यू नो वक्त आया था, हाँ, रामायण। उस तरह की रामायण, महाभारत, उस हम्म, तरह की सीरियल्स थी। एंड हम लोग वी यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड, रजनी, वो वाज अ वेरी राइट, पॉपुलर, तो हम सब लोग राह देखते थे इन सीरियल्स की। राइट। आज क्या हो गया है, हम, ये पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है, सिर्फ एंटरटेनमेंट दुनिया की नहीं है ये प्रॉब्लम। हम लोग ओवर कम्युनिकेटेड सोसाइटी में जीने लगे हैं आजकल। हम्म, जैसे पहले जब हम लोग शूटिंग पे जाते थे, मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, तो मैं निकली और कहीं एक 20-21 किलोमीटर दूर हमारा लोकेशन हुआ करता था, जो भी स्टूडियोज़ थे। हमारे मेकअप रूम्स कहीं, वहाँ से चल के जाना पड़ता था सेट पे, और हम्म, वहाँ से चल के आगे कुछ 10 मिनट लगते थे ऑफ़िस पहुँचने में, मेन ऑफ़िस। उस मेन ऑफ़िस से फिर फ़ोन करो घर पे कि हाँ, लंच में फ़ोन किया कि हाँ, सुबह से सब कुछ ठीक चल रहा है और आज 6 बजे नहीं होगा पैकअप, आज रात को 9 बजे तक चलेगी शूटिंग। तो मैं 10 साढ़े 10 बजे पहुँचूँगी घर पे। हम्म, बस एक लंच में फ़ोन कर दिया, हो गया काम। फिर पूरा दिन देयर वाज़ नो कम्युनिकेशन। रात को साढ़े 10 बजे तक, अरे अभी तक नहीं आई पल्लवी? हाँ, हो सकता है आधा घंटा और एक्सटेंड हुआ होगा। हम्म, अगर मैं साढ़े 11 तक ना पहुँचूँ घर पे, तब फिर परेशान हो जाते थे कि अरे अभी तक क्यों नहीं आई? अभी तक हाँ। लेकिन तब तक वो भी, they were also rest assured that I'm working and I have let them know, दोपहर को फ़ोन आया था। हाँ, आज अगर 10 बजे अगर आप नहीं पहुँचे, तो 10 बज के 3 मिनट पे आप इमीडिएटली फ़ोन करते हैं आपके मोबाइल में, भई हो कहाँ? हाँ, हम पहले किसी को कहते थे, एक काम करो मुझे 5:30 बजे वहाँ इस सिग्नल पे मिल जाना। वो आदमी 5:20 से आके रुक जाता था आपके लिए पौने 6 बजे तक। राइट। आजकल ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम लोग कुछ ज़रूरत से ज़्यादा हमने कम्युनिकेशन शुरू की है, और इस कम्युनिकेशन ऐज में चॉइसेस बढ़ गई हैं हमारी ऑब्वियसली। तो नेटफ्लिक्स भी है, अमेज़न प्राइम भी है, सोनी लिव भी है, वूट भी है, ओल्ड बालाजी भी है, 100 चैनल भी हैं, और इंटरनेट पे भी बहुत सारा आपको और चीज़ें मिल जाती है, यूट्यूब भी है। कितना कंज़्यूम करेगा आदमी? Yeah, it's very confusing for I don't know rest of the world for जैसे हर चैनल पे जाओ एक ही स्टोरी चल रही होती है। नहीं, मैं क्या करती हूँ, मेरी हमेशा की आदत है ऑफ़िस में, मेरा जो लंच टाइम होता है, मैं जब खाना, लंच टाइम कुछ नहीं होता, खाना खाने भर का समय जो होता है, तो हम्म, उस वक़्त पे आई लाइक टू सी सम शो। तो अच्छा। मैं एक वो आधा घंटा अपना निकाल लेती हूँ, एक आध कोई एपिसोड देख लेती हूँ। यू वोंट बिलीव मी, ये पूरे लॉकडाउन में तो, मतलब वो हमारे इंडिया में तो आप जानती हैं सारे मेड्स की वगैरह सब प्रॉब्लम हो गई, तो वी वर ऑल सो बिजी विद द हाउस वर्क एंड, और यहाँ पे इट्स नॉट लाइक यूएस हियर ना कि आप मतलब हफ्ते में एक बार वैक्यूम करके नहीं होता, हमारे घर पे तो 24 घंटे धूल आती रहती है। तो आई नो। रोज का डस्टिंग, रोज की झाड़ू पोछा, बाथरूम धोना, एंड इंडियन लाइफस्टाइल भी अलग है, तो खाना दोनों वक़्त का बनता है, रोटी, चावल, दाल सब। पिताजी के लिए अलग खाना, बच्चों के लिए अलग खाना, ये सब। तो उस सब में इतना हम लोग बिज़ी रहे, नॉट जस्ट मी बट इवन द किड्स वर हेल्पिंग मी, विवेक वाज़ आल्सो हेल्पिंग मी। तो हमने कुछ ज़्यादा देखा नहीं उस वक़्त। एंड देन सडनली आफ्टर दैट वन्स द वर्क स्टार्टेड अगेन, म आई एक्चुअली जस्ट टर्न ऑन नेटफ्लिक्स या अमेज़न प्राइम, मैं खोलती हूँ और मैं ढूँढती ही रहती हूँ कि मैं क्या देखूँ, क्या देखूँ, क्या देखूँ? तब तक मेरा खाना हो जाता है। और फिर मैं बंद कर देती हूँ और फिर हाथ धो के वापस अपने काम पे लग जाती हूँ। मैं पिछले 1 हफ्ते से मैं यही कर रही हूँ, क्योंकि इतनी चॉइस है, आप इवन बिफोर यू कैन मेक अप योर माइंड कि मुझे ये देखना है, उसी में आपका 15-20 मिनट उसी में निकल जाते हैं। या नहीं वही मैं कह रही इतनी कंफ्यूजन हो जाती है कई बार। एंड कई बार आप एक देखते हैं अच्छा चलो ये देखते हैं अच्छा लग रहा है हाँ, और उसके बाद थोड़ा ये तो यार बहुत बोरिंग है लाइक आपका वो आधा घंटा भी गया फिर। हाँ, तो इतने आई थिंक अब इतना सब बन रहा है मुझे कई कई बार लगता है स्पेशली मेरे बच्चे तो ऑफ कोर्स यूएस में पले बड़े वो हमेशा कहते हैं मॉम ये आंटीज हमेशा ज्वेलरी पहन के सोती कैसे हैं इतना सब कपड़े मैंने कहा बेटा ये सब दिखाने के लिए सब अपने नाइट गाउन में ही सोते हैं घर में बट रियलिटी से काफी कई चीजें बहुत दूर है मुझे कई बार लगता है।
इसीलिए आई थिंक आई कनेक्ट टू आर्ट मूवीज बेटर बिकॉज आर्ट मूवीज आर मोर रियल टूवर्ड्स लाइफ. इट्स नॉट अ फैंटेसी वर्ल्ड. Do you agree that is that how you also think? वेल आज के ज़माने में आप देखें तो आर्ट आर्ट सिनेमा है कंप्लीटली हैज़ डाइड डाउन. इट डाइड डाउन इन द अर्ली 90s. बट हाँ, आज एक रियल सिनेमा भी आजकल बनना शुरू हो गया है अलोंग विद द कमर्शियल सिनेमा. लेकिन ये जो इस टाइप की जो रियलिस्टिक फ़िल्में जो है ना, आई वुड स्टिल से दैट इट इज़ अ रिच मैन्स हॉबी. द रीज़न आई एम सेइंग दैट इज़ बिकॉज़ हम लोग अ, हम लोगों को ये रियलिटी इसलिए देखना अच्छा लगता है क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं. हम जानते हैं दुनिया में क्या हो रहा है, हमारे इर्द-गिर्द क्या हो रहा है, हम अवेयर हैं. और जब हम उस प्रॉब्लम को देखते हैं, तो एक बहुत ही स्टडीड एंगल से हम लोग देखते हैं. कि यार ये इस प्रॉब्लम को कितनी अच्छे से इन्होंने पेश किया है देखो. Mm-hmm. और हमें कुछ एक जो उसमें समस्याएँ जो होती हैं, वो आपकी और मेरी समस्याएँ हैं भी नहीं. Right, yeah, बिल्कुल और भी. इसीलिए हमको वो देखने में अच्छा लगता है कि देखो कितना मतलब हम लोग शबाना आज़मी जैसी एक्ट्रेस है, जो आज हमको पता है कहाँ जुहू में इतने बड़े घर में रहती है, लेकिन उसने एक एक बेगर का रोल कितने अच्छे से निभाया. वो बिल्कुल लगी उस कैरेक्टर में. शी वाज़ ट्रू टू द कैरेक्टर. उनका गेटअप, उनकी साड़ी, उनका जो भी था वो बिल्कुल करेक्ट था. सो वी एप्रिशिएट फिल्म्स लाइक दिस. बट जो लोअर मिडल क्लास या उससे भी नीचे के लोग हैं, जो इसी ज़िंदगी और इसी जीवन के साथ जूझ रहे हैं, दे डोंट वांट टू गो एंड सी द सेम थिंग अगेन ना. Very true, वो yeah. तो देखना चाहते हैं अमिताभ बच्चन जो रोमांस कर रहे हैं एक बड़ी ग्लैमरस सी रेखा से, और वो उसे कोई छेड़ता है तो 10 लोगों को वो जाके पीटेंगे. तो वो जब फ़िल्म देखते हैं तो उस रात के लिए बेचारे वो अमिताभ बच्चन बन जाते हैं अपने ख्वाबों में, अपनी बीवी को रेखा समझते हैं और एक हसीन रात निकलती है उनके साथ में. तो That is ये सिनेमा उनके लिए एक एस्केपिज़्म का भी रूट है. So hence the need of commercial cinema, and for people like you and me, probably the need of realistic cinema. So हम लोग we can't say that this one is better or the other one is bad. Both are equally important because there are different people living in different stratas. तो सबको entertainment मिलना बहुत जरूरी है. yeah, And of that's course, very there true. are films like Welcome. And Welcome ही मेरे ख्याल से my daughter, I don't know how many times she's seen the film and she cracks up every time she sees the film. मतलब उस दिन मैं मैंने उसके नहीं देखी, सॉरी. and she says, "Mama, this film makes no sense. Just see it." उसके लिए भी फिल्में देखी जाती है. राइट, राइट. लाइक मेरे बच्चे यूएस में जब पले बड़े तो मैं थोड़ा केयरफुल थी कि वो क्या देखें. जैसे हम्म, हमारे पापा ने हमको बहुत केयरफुली सिलेक्टिव चीजें दिखाई. हम लोग सुबह राग आधारित गाने सुनते थे, न्यूज सुनते थे. टीवी तो जैसे मैंने आपको बताया था ही नहीं. ही यूज्ड टू कॉल इट हम्म, अ इडियट बॉक्स कि उसके right. सामने बैठोगे तो इडियट बन जाओगे. हम्म, सो ये धारणा थी पहले, हाँ. बहुत सिलेक्टिव चीजें हमको दिखाई. तो इसीलिए म्यूजिकल बैकग्राउंड था. मेरे चाचा वगैरह सब म्यूजिक डायरेक्टर हैं, पापा खुद फ्लूट बजाते थे. तो हम सब यही सुनते देखते आए. तो मैं भी वही करती थी, कोशिश करती थी कि घर में जैसे जब मेरी बेटी सोती थी क्लासिकल म्यूजिक बजता था उसके रूम में, वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक, एंड दैट्स हाउ शी विल स्लीप मेरे 6 लोरियां गाने के बाद. सो दैट्स हाउ म्यूजिकल शी वाज. बेटे को नहीं फर्क पड़ता था, उसको बस एक लोरी सुना दो और हम्म, बस वो उसका खुश वो सो जाता था. बट यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इसकी माहौल जैसा हम लोगों ने बनाया तो इतनी इंडियन सिनेमा हम नहीं देखते थे. हम्म, और हम लोगों ने, शायद मेरे बच्चों ने बड़े रिलक्टेंटली देखी 3 इडियट्स. हम्म, मैंने उनसे कहा एक बारी चल के देख लो, अगर तुमको नहीं पसंद आएगी आई नेवर फोर्स यू टू वॉच अ हम्म, हिंदी मूवी. And they just loved Three Idiots. that's so And sweet. just like कभी भी टीवी पे आ रही थी, we want to watch this movie. कितनी बारी देख चुके हैं. So although it's a commercial movie, but it is done so beautifully. And मेरी बेटी को दंगल जैसे बहुत पसंद आई, you know. So all these movies, I think they're awesome movies, although they're commercial and they're, you know, have a great message. I think the kids also look for a message. So you know, अब इतने सालों से हम अमेरिका में रहते हैं, you know, we want to teach our kids Indian culture. लेकिन कई बार लगता है कि मूवीज दिखाएं तो उसमें इंडियन कल्चर कहाँ है.
कमर्शियल मूवीज में, राइट? एक बारी मुझे याद है, मेरी बेटी बहुत छोटी थी, कोई एक्ट्रेस आई डोंट रिमेम्बर, वो डांस कर रही थी एंड शी सेड, मॉम कम हियर, शी इज नॉट वेयरिंग एनीथिंग, शी इज वेयरिंग व्हाट यू वेयर अंडरनीथ, बट शी वाज टॉकिंग अबाउट अंडरगारमेंट्स एंड आई सेड, नो बाबा, दैट्स जस्ट अ कॉस्ट्यूम, से मत किया। But that was the reaction of a 5-6 year old. So, but Yeah. anyway, that's a different topic that, you know. So, आपने, मैं आपका इंटरव्यू देख रही थी मनोज जी के साथ, यू वर सेइंग कि आप बहुत क्रिएटिव हैं, खाना भी बनाते समय यू यूज योर क्रिएटिविटी। सो गिव अस सम एग्जांपल्स, गाने के अलावा, और डू यू पेंट, डू यू डू एनीथिंग एल्स देन सिंगिंग एंड एक्टिंग? I don't paint. I have no sense of painting actually. Um, the thing is that there are certain things that my husband does which I decided not to dabble in at all, like That's a direction. good idea. And Vivek is a painter, so I have decided not to play around with colors at all. Let him do that. But what else do I do? I have a lot of plants in my house. So I do like I can't call it gardening because वो सारे एक अपार्टमेंट के अंदर हैं pots, but हाँ वो सब उनको क्लीन करना, और नए ज्यादा अगर बड़ा चौड़ा हो गया पौधा तो उसको खोद के निकालो, वो बल्ब दूसरे गमले में शिफ्ट करो, ये मेरा चलता रहता है। वो मुझे बहुत उसमें मुझे बहुत ही वो क्या कहते हैं थेरेप्यूटिक लगता है थोड़ा, Yes, it is. Yeah. प्लांट्स के साथ काम करना। और मैं चूंकि मैं गाती रहती हूँ चौबीसों घंटे, जब भी मतलब मेरा अनकॉन्शियसली मैं करती ही रहती हूँ। आई डोंट इवन रियलाइज आई एम सिंगिंग, आई एम Mhm. कॉन्स्टेंटली हमिंग और आई एम सिंगिंग। सो व्हेनेवर आई एम वाटरिंग माय प्लांट्स सो आई कीप सिंगिंग टू देम। तो कहते हैं कि प्लांट से बातें करनी चाहिए, उनको गाने सुनाने चाहिए, तो वो मैं तो भी बाय, करती हूँ। हाँ वो मेरे मेरे पौधे तो दिन भर गाना सुनते ही रहते हैं क्योंकि मैं गाती रहती हूँ। सो And I'm sure they're very healthy also, right? yeah, I must say I have good looking plants at home. They're, you know, Yeah. that या much. एक्चुअली ये बात मैंने भी नोटिस करी, मैं घर में हमेशा से गाती रहती हूँ, और मेरे सारे प्लांट्स, लोग मुझे कहते हैं ग्रीन थंब, एंड आई हाँ, टेल देम नो, आई टॉक टू माय प्लांट्स, दे आर माय बेबीज, आई एम हाँ, टेकिंग केयर ऑफ देम, एंड उनका एक एक पत्ती का मुझे पता होता है, अच्छा आज ये पत्ती निकल रही है। सो इट्स लाइक पान का पौधा, दुनिया भर के पौधे मेरे घर हैं, एंड आई केयर, एंड मेरे हस्बैंड कहते हैं ये घर एक दिन जंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। स्पेशली जब आपने कोई नया सीड लगाया हो, कुछ लगाया, जो जो पहली वाली जो कली निकलती ओह है या, ना, ओह माय गॉड, मुझे तो रोना आता है उसको देख के। एंड एवरीवन सेज दैट। मैं एक्चुअली मेरे जब बच्चे पैदा हुए उसके बाद मैं बहुत इमोशनल हो गई। तो मैं कभी-कभी सेरेलैक की एड आती है टेलीविज़न पे, वो देख के मुझे आँसू आ जाते हैं। ओह, तो मुझे सब लोग कहते रहते हैं, माय किड्स आर एक्चुअली वेटिंग। वो सुबह उठ के अगर देखते हैं कि अच्छा इसमें से कुछ निकल रहा है, दे नो दैट मम्मा की रिएक्शन क्या होने वाली है। और दोनों देखते रहते हैं मुझे, एंड इफ दे सी अ टियर इन माय आई, दे बोथ स्टार्ट लाफिंग दैट हां सी वी हैड सेड। आई नो, बच्चों को, मेरे यहाँ ब्रह्म कमल खिला, जब ब्रह्म अच्छा। कमल खिला तो मैं पागल हो गई थी, जैसे आप समझ सकती है मेरी हालत। हाँ, हाँ। एंड मेरा बेटा से, व्हाट्स द बिग डील, लाइक एक फूल ही तो खिल रहा है। मैंने कहा नो, यू हैव नो आइडिया, पूरे साल में एक बार सिर्फ रात के टाइम में खिलता है। तो मैं हाँ। पूरा प्लांट अंदर ले आई, उसके सामने वो वीडियो वगैरह लगा के बैठ गई, एंड मैंने कहा आज रात में सोने नहीं वाली। सो मेरे हस्बैंड को तो पता था, हाँ ये इसका यही हाल होना है। फिर मैंने उसका शूट किया, वीडियो रिकॉर्ड किया, एंड फिर मैं अपने बच्चों को दिखा रही थी, Mom, what's the big deal? But I guess that's the difference, and one day they will become like us. हम भी ऐसे ही होते थे जब छोटे होते थे। Yeah, I've heard my mother saying so many times, तुम्हारे बच्चे होने दो फिर तुम्हें समझ में आएगा। Yeah. Unfortunately, she is not around for me to tell her that you were right. But Yeah. yeah, I'm doing the same things she used to do. Payback time. So अभी आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, और करंटली व्हाट आर यू, आप उस दिन कह रही थी आप भोपाल से आई हैं कुछ शूटिंग करके, जी, तो टेल हमने अस अबाउट दैट। एक्चुअली हुआ ये कि एक लॉकडाउन में बहुत परेशान हो गए थे सब लोग घर पे बैठे-बैठे। हम्म। एक अच्छी चीज़ जो हुई लॉकडाउन के बारे में, सब लोग बुराइयाँ ही करते रहते हैं, लेकिन एक अच्छी चीज़ जो मेरे ख्याल से हर फैमिली ने महसूस की, वो ये है दैट आई गेस द फैमिलीज़ केम क्लोज़र टुगेदर। यस,
And because my kids are all grown up now, they hardly have time for the two of us, you know. Mhm. And it's also not right on our part to keep telling the children कि अरे spend some time with us. फिर वो बेचारे guilt में आ जाते हैं. Right. तो बहुत कम सुबह उठ के दिखे बच्चे, फिर कॉलेज चले गए, कॉलेज के बाद पार्ट टाइम हमारे ऑफिस में काम करते हैं, एंड देन दे वुड गो आउट विद देयर फ्रेंड्स, फिर हम लोग सो गए, ये रात को आए देर से. लेकिन इस लॉकडाउन में वी हैड नो चॉइस, वी ऑल हैड टू स्टे इंडोर्स. तो इट वाज लाइक रीडिस्कवरिंग देम, all over again. And I actually understood how much my kids have grown when I started spending, time with them 24/7. Yeah. फिर हम साथ में खाना बनाया, साथ में बहुत सारी चीजें, सब फिल्में हम लोग साथ में बैठ के देखते थे कभी-कभी. Mhm. तो खैर ये तो दिस वाज द गुड पार्ट ऑफ इट, पर कितने दिन करें ना ये घर में बैठे-बैठे. Right. So Anupam Kher and Satish Kaushik were about to start a play. Hmm. तो वो लॉकडाउन की वजह से उनका रह गया. सो दे केप्ट थिंकिंग कि चलो अगले महीने करेंगे, अगले महीने करेंगे. Just couldn't happen. And then as things stand now, we know that थिएटर्स वगैरह जो है, ड्रामा थिएटर्स, वो अभी नहीं खुलने वाले अगले Hmm. 4-5 महीने तो कम से कम. Hmm. तो क्या करें, इतनी अच्छी स्क्रिप्ट है. सो ही कॉल्ड विवेक, अनुपम जी कॉल्ड विवेक, एंड ही सेड दैट लेट्स कन्वर्ट दिस इनटू अ फिल्म. Acha. You come on board, you direct the film. And it is a very sweet story about friendship, Acha. about these two almost childhood friends. Matlab, they meet each other when they're like teenagers or something, and now they are both about 80-85 years old. Oh. And it is I can't divulge too many details because I'm not supposed to, as per my agreement. नाम बता सकते हैं? It's called The Last Show. Last show. अच्छा. Wow. और बहुत ही प्यारी, फनी, not overtly comical, but very rip-tickling kind of moments in it. Not exactly a slice of life, but somewhere in that, around that genre. ऐसी बहुत प्यारी फिल्म है. और हम लोग then they started writing the script. So Rumi Jafri came in and he अच्छा. said, I'll write the script. उन्होंने कुछ 5-7 दिन में स्क्रिप्ट लिख के दे दी. अरे वाह. सारे दोस्त एक एक करके जुड़ते गए इसमें. And then there was this girl who's you know uh, who's there in the film. तो मैं नाम सजेस्ट कर रही थी, then अनुपम जी said, why don't you play that role? मैंने कहा it's a girl's role, it's not a woman's role. So he said, no, you'll totally look that girl. तो कुछ एक 30-35 साल की वो लड़की दिखाई है. So then finally I did the character. Mhm. And so I went to Bhopal, and then both the children were assisting Vivek. तो हम चारों लोग फिर भोपाल चले गए, and तकरीबन I was there for about 20 days. Mhm. बाकी लोग और रहे, ये तीनों रह के आए. और and we finished the film, all of us, In a you know month. less than a month, in Oh about wow. 25 days we went there. We मतलब रेकी वेकी की, इन्होंने शूटिंग स्टार्ट की, सब प्रोडक्शन पूरा सब खत्म होने में हम 24-25 दिन में वापस आ गए थे. Wow. It was a very quick film. और चूंकि पूरी फैमिली वहां पे साथ थी, but we had spaced ourselves out. At least the kids were in a different room, Mhm. and we were in a different room. तो at least पैकअप के बाद तो ऐसे था कि चलो एक दूसरे को थोड़ा सा, मतलब Time. पूरे Yeah. काम, हाँ, पूरे दिन के काम के बाद आपको थोड़ा सा क्या अनवाइंड करने के लिए जो स्पेस चाहिए होती है वो सबको मिली. Right. But what an enjoyable experience it was. Suddenly when we went on the sets, we realized that how much we missed our work. It was like, getting to breathe once again. Yeah. Even through our masks, we felt that. Yeah. I mean, it's really amazing कि अभी हम लोग भी कुछ Zoom से कर रहे हैं plays. And जब आधे अधूरे की बात निकली तो of course उसको stage करना will be really a challenge, and I wanted to do that maybe after 10 years of little bit, but now जब मैंने Zoom पे कहा, सबने कहा are you out of your mind, आधे अधूरे on Zoom. So मैंने आपको एक छोटी सी लिंक भेजी है, देखिएगा.
मैंने देखी नहीं अभी, I forgot to see it. बहुत छोटा सा लास्ट का सीन फिर है भी याद है। जिसमें हाँ, सावित्री का मोनोलॉग है। मैंने कहा करके देखते हैं, अगर हम्म। हम करेंगे ही नहीं तो जानेंगे कैसे, हार पहले ही मान लो। सो When कर she दो। talks about how Mahindra was used by यस। everyone. अच्छा, हाँ। सो फिर मैंने उसको जब हमने शुरू किया, एंड आई एम बिग फैन ऑफ मोहन राकेश, उनका प्ले व्हाट वाज दैट, लहरों के राजहंस मैंने कॉलेज में किया था मुझे लगा एज आषाढ़ में थ्री। की बात करनी है। तब मैं उस कैरेक्टर को नहीं समझ पाई थी फिर भी किया था। एनएसडी से हमारे आए थे डायरेक्टर, और अब शायद उसके कैरेक्टर को ज्यादा समझ पाऊं बिकॉज आई एम इन दैट एज ग्रुप। तो मैं मोहन राकेश जी की तब से बड़ी फैन हूँ, तो वो हम लोगों ने किया। फिर अभी हम लोग खामोश अदालत जारी है करने वाले हैं। सो जूम पे हम कर रहे हैं बट इट्स नॉट द सेम। स्टेज पे एक वो जो एक आपको ऑडियंस से एक वाइब्रेंस मिलती है, आपका एक इंटरेक्शन होता है, इट्स वेरी डिफरेंट। हाँ, of सो आई course. कैंट वेट फॉर ऑल दिस टू एंड। बट अभी तो रेट्स जिस तरह से बढ़ रहे हैं एंड जिस तरह से चीजें चल रही हैं, another 6 months probably Yeah. will be all stuck. But आपके लाइफ में आपके रोल मॉडल आप किनको बोलेंगे? रोल मॉडल्स मेरी लाइफ में बहुत सारे हैं। सबसे पहले तो मेरी नानी है, हम्म। कि जिन्होंने एक ऐसे समय पे अ, काम करना शुरू किया जब औरतें बहुत ज़्यादा काम नहीं करती थी, और वो भी एक ऐसी फ़िल्म इंडस्ट्री में उन्होंने हम्म। काम करना शुरू किया, जिससे ताल्लुक भी आपका दूर-दूर तक हो तो आपको मतलब ऑस्ट्रेसाइज़ कर देती थी सोसाइटी पूरी तरह से। हम्म। But she was a, woman of great gumption. And my Nana ji was like, he always stood behind her. And so I would like to start with her, that she's been always been my great source of inspiration. After that, of course, my mother, for not for any other thing, but with just the tenacity that, she brought us up. Uh, उनका अपना करियर था, लेकिन मैंने कभी उनको बिज़ी नहीं देखा। मैंने कभी उनके मुँह से ये नहीं सुना कि रुक जाओ अभी मैं काम कर रही हूँ। She always had time for us, always, and I don't know how she managed it. तो मैंने मतलब व्हेन माय किड्स वर ग्रोइंग अप, मैंने तो कुछ एक 2-3 साल के लिए ब्रेक ही लिया था काम से, क्योंकि मैं जैसे हमारे सर पे, मुझे ऐसा लगता है औरतों के सर पे ये थोपा गया है कि हम लोग मल्टीटास्किंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और इसलिए कुछ ज़्यादा ही काम हमारे सर पे पड़ जाता है। मैंने तो पहले ही हाथ खड़े कर दिए थे। बिफोर आई गॉट मैरिड, आई टोल्ड माय हस्बैंड, आई डू नॉट मल्टीटास्क। मैं एक समय पे एक ही चीज़ पे फोकस कर सकती हूँ। इफ दैट इज़ अ फ्लॉ, देन इट्स अ फ्लॉ, बट आई कैन ओनली डू वन थिंग एट अ टाइम। तो अगर मैं सेट पे हूँ और मुझे घर से फ़ोन आया कि दोनों बच्चों के बीच में झगड़ा हो रहा है, तो आई कांट सॉल्व दैट, बिकॉज़ मेरा पूरा ध्यान मेरी सीन में होगा। बिल्कुल। सो बट आई डोंट नो हाउ माय मदर मैनेज्ड दैट, सो मुझे नहीं लगता मैं उनके जैसी बन पाई हूँ कभी। बट हाँ, एक विश लिस्ट में मेरी, अभी तो बकेट लिस्ट ही कहना पड़ेगा उसको, विश लिस्ट के तो दिन निकल गए। उसमें है कि कहीं न कहीं किसी एक मोमेंट पे मैं लाइफ में उनकी तरह रिएक्ट कर पाऊँ, जैसे वो, शी ऑलवेज़ हैड टाइम फॉर अस। वर्क वाइज़ आई वुड से, I have favorite actors, but within the film industry, I don't have any role models as such. But I do have favorite people here. I do have favorite performances. Uh, but yes, I think my nanny and my mother would be the only two people. That only, yeah. I mean, वो तो बहुत फेवरेट लोग पीपल तो मिलते ही हैं आपको, आपके लाइफ हाँ, में आप जिनसे मिलते हैं, जिनसे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, लेकिन जिनकी वजह से आप जो कुछ भी हैं, हाँ। तो वो ही आपके बेसिकली आपके रोल मॉडल बन पाते हैं। एंड आई और थिंक पेरेंट्स डू। मेरी नानी अपढ़ थी। उनको बिल्कुल आता नहीं था पढ़ना लिखना। वो बम्बई आई, जब उनकी शादी हुई, उसके बाद उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा। एंड वाह। she used to write fabulous poetries after that. Fabulous poetries. I don't know, मतलब, उन्होंने बुक्स लिखी हैं उसके बाद।
Oh, really? Wow. Somebody who was In an Marathi. invalid for the first 18 years of her life, you know, she self educates herself, becomes a career woman, starts earning for the family, and then goes on to write books and becomes an author too. Wow, hats off, huh? She was made of some other stuff. या आई मीन ऐसे लोग अगर पढ़ाई इनको उनको पढ़ाया लिखाया जाता तो आई मीन ऑफ कोर्स वो बन गए, उनको जो बनना था वो और भी क्या नहीं कर जाते, राइट? नहीं है, बिल्कुल। या दैट्स अ सैड पार्ट ऑफ आवर कंट्री। अब तो चलो अब चीजें बदल रही हैं थैंक्स टू द न्यू जनरेशन। बट आपने जैसे अपनी मदर के लिए कहा, मैंने भी अपनी मदर से कभी नहीं सुना वो थकी हुई हैं, या हम 5 बच्चे थे, आई एम द हम्म, फिफ्थ चाइल्ड, कभी okay. मैंने सुना नहीं कि ओ आई एम टायर्ड। हम लोग इतनी 2 बच्चों में लाइक मुझे लगता है ओ माय गॉड मेरी सारी एनर्जी निकल गई। You should अब interview my kids. They'll tell you exactly the amount of times I've said I'm tired during, the lockdown. और मैं कितनी बार दिन में बोलती थी ये भी बताएंगे आपको वो। So, well, it's so nice to talk to you, Pallavi ji, and about Same here. you and how, and your husband is the director, producer, and now you're a producer, right? Yeah. As well. Do you direct movies or plays? No, he directs, I produce. Okay, that's a And, good teamwork, huh? and then if there is a good enough role, I also become a part of the acting team then. Yeah. Oh, that's a big contribution. Because दोनों जने एक काम करने लग जाएं तो मुझे कई बार लगता है क्लैशेस भी बहुत हो जाते हैं, right? हाँ, मतलब मेरे ख्याल से मियाँ बीवी को एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, सब्स्टिट्यूट नहीं करना चाहिए। Exactly, yeah, yeah, and I completely 100% believe in that. मेरे हस्बैंड मैं क्या करती हूँ उनको आइडिया भी नहीं होता। ही इज अ साइंटिस्ट, मुझे तो बिल्कुल भी वो बाउंसर है मेरे लिए। सो लेट हिम डू व्हाट ही वांट्स टू डू, व्हाट आई डू इट्स जस्ट कंप्लीटली ऑपोजिट। बट आजकल के यंगर जनरेशन के लिए जो एक्टिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, एक्टिंग थिएटर को तो मैं देख रही हूँ बिल्कुल धीरे धीरे इट्स डाइंग, जस्ट लाइक आर्ट मूवीज आपने कहा। एंड दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड दिस नाट्य दर्पण की थिएटर लोग जाके देखें प्ले, नॉट कि यूट्यूब पे देख लिया। और यूट्यूब पे मैं छोटा सा पीस डालती हूँ, पूरा नहीं प्ले डालती, इसलिए ताकि लोग थिएटर में जाके प्ले देखें। एंड वो हमारे यहाँ $25 या $50 की टिकट होती है विच डजंट कवर most of the expenses even. But how will you tell people कि जाके देखो, घर में बैठे बैठे ये टीवी के सामने या कंप्यूटर के सामने यूट्यूब्स और ये सब में देख के, सो थिएटर लवर्स के लिए आप क्या बोल? हाँ, मैं ये मानती हूँ कि थिएटर का फुटफॉल थोड़ा कम हुआ है, बट आई वुडंट गो एज फार टू से दैट थिएटर इज डाइंग। इट इज क्वाइट अलाइव। और यहाँ पे जैसे बम्बई में जो कि बहुत बड़ा हब है थिएटर का, यहाँ पे मराठी प्लेस होते हैं, गुजराती होते हैं, इंग्लिश होते हैं, हिंदी होते हैं, कन्नड़ा प्लेस होते हैं, और ये सब प्लेस अभी भी वैसे ही जारी है जैसे पहले होते थे। हाँ, पहले जैसे मराठी कमर्शियल थिएटर जो है उनके सुबह 11 बजे के भी शोज लगते थे वीकडेज में, और वो भी हाउसफुल जाते थे। वो शायद अब कम हो गया है क्योंकि जिस तादाद से ट्रैफिक बढ़ गया है, हर जगह से एक जगह से दूसरी जगह जाने आने में ही इतना समय लगने लगा है अभी कि वो दिन के शोज थोड़े कम हो गए हैं, लेकिन शाम के शोज और वीकेंड के शोज बिल्कुल उसी तरह चल रहे हैं जैसे पहले चलते थे। इनफैक्ट अभी रेट्स भी बढ़ गए हैं, थिएटर एक्टर्स आर गेटिंग बेटर मनी नाउ। एंड अभी विथ डिफरेंट कंपनीज लाइक बुक माई शो एंड स्टफ, एक रेवेन्यू मॉडल भी वो अलग से बना सकते हैं वेयर they can also guarantee the no profit no loss basis पे तो कम से कम वो आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि पैसे डूब जाएंगे आपके। So there are different permutation combinations to ensure that the producer doesn't have to take a hit in case the play doesn't work. तो थिएटर अभी भी चल रहा है काफी, मैं तो समझती हूँ। I personally like to watch a lot of theatre. मैं बहुत देखती हूँ plays, of course whenever I have time. तो और थिएटर में जो आपको एक्सपीरियंस मिलता है वो आपको कहीं मिल नहीं सकता। इवन आई मीन मैं एक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से कह ही नहीं रही हूँ, मैं एक दर्शक के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ। जब मैं बैठ के देखती हूँ किसी एक एक्टर को कि जो 2-2.5 घंटे मेरे लिए
एक सांस में एक इंटेंसिटी में परफॉर्म करता है, दैट फॉर मी मेक्स मी एज एन ऑडियंस फील सो स्पेशल that somebody has taken that effort so that I can, have a good time. एग्जैक्टली या So it really touches my heart, as an audience. तो जिन लोगों को थिएटर से प्यार है, अच्छा टूर्स भी बहुत कर रहे हैं लोग, हम्म तो पूरे इंडिया में थिएटर चल रहा है, बाहर भी चलता है, यहाँ के शोज़ जब यूएस जाते हैं या यूके जाते हैं, ओ या तो बहुत चलते हैं वहाँ जाके शोज़। तो एक्सपेरिमेंटल थिएटर मुझे नहीं पता क्योंकि उसके बारे में मुझे पहले भी नहीं पता था कि वो कितना आजकल चल रहा है। बट एज़ फार एज़ कमर्शियल थिएटर इज़ कंसर्न्ड, आई थिंक इट्स स्टिल डूइंग वेरी वेल। Oh, wonderful. That's a great news for theater lovers like me. हाँ, You हाँ, know, मैं ये सवाल सभी से पूछती हूँ और आपसे भी पूछ रही हूँ। ऑफ कोर्स आपने उसका जवाब एक तरह से दे ही दिया कि थिएटर और फिल्म्स में हाँ, आप किसको चूज करेंगे अगर आपको एक्टिंग करनी हो, लाइक बोथ बोथ या बोथ बिकॉज़ दोनों एक्सपीरियंस और दोनों का हाई अलग है। सेम है यू नहीं कांट कंपेयर वन विद द अदर। जैसे कि थिएटर में आप एक कैरेक्टर में, जैसे आपने कहा 2.5 घंटे हैं, हुँ, एक कंटिन्यूटी रहती है, राइट? आप एक हुँ, कैरेक्टर में चले गए, उसके बाद आप वहीं हैं। हुँ। लेकिन क्या मूवीज में और शॉर्ट फिल्म्स में ऐसा नहीं होता है कि वो टूट जाता है कनेक्टिविटी, और बार बार आपको उसको रिक्रिएट करना पड़ता है? हाँ, बट देन दैट्स द चैलेंज ना, दैट हम्म आपने जहाँ पे जिस इंटेंसिटी पे छोड़ा है, उसी इंटेंसिटी पे आपको दोबारा शुरू करना पड़ता है। हम्म तो जैसे मैं इसको है ना हमेशा लाइफ लेसन्स की तरह देखती हूँ। हमारे कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि जो हम कई सालों नहीं मिलते, लेकिन हम जब भी मिलते हैं वी टेक ऑफ फ्रॉम वेयर वी हैड लेफ्ट ऑफ, यस तो हर शॉट को उसी तरह से हमें देखना चाहिए कि हमारा अगला शॉट चाहे 5 मिनट बाद आए, चाहे आधे घंटे बाद आए, चाहे 1 घंटा बाद आए। यू हैव टू मेंटेन दैट इंटेंसिटी। अभी तो बहुत आसान हो गया है बिकॉज़ अभी तो सब कुछ दिखता है आपको, आप मॉनिटर पे जाके देख सकते हैं आपका प्रीवियस शॉट। अच्छा पहले तो था नहीं ऐसा, तो पहले वी हैड टू मेंटेन आवर ओन। जब मूवी कैमराज़ मतलब फ़िल्म पे जब शूट किया जाता था, आजकल तो डिजिटल कैमराज़ हैं सब, हम्म तो आप इमीडिएटली रिवाइंड करके आप देख सकते हैं अपना पहले का शॉट। पर जब फ़िल्म पे 35 एमएम पे हम लोग शूट करते थे, तब तो ये फैसिलिटी थी नहीं मॉनिटर्स की। अच्छा तो तब वी हैड टू रिमेंबर आवर ओन इंटेंसिटी एंड द डायरेक्शन टीम यूज्ड टू कीप रिमाइंडिंग अस कि हम्म नहीं आप थोड़ा कम है, यू आर लिटिल मोर इंटेंस इन दिस, या आप कुछ ज़्यादा कर रही हैं, थोड़ा कम करिए। तो वो एक अपना चैलेंज है, तोड़-तोड़ के कई बार तो हम एक ही सीन 2 दिन चलता है हमारा। अच्छा घर पे गए, आप रिलैक्स कर लिया, किसी ने जाके एक हाथ ड्रिंक ले लिया, खाना-वाना खाया, खूब हँसे-वसे, अच्छे से सोए और दूसरे दिन आके वापस रोने का सीन करना है। मतलब so it becomes difficult, but then उसका एक अपना मज़ा है अलग। वो भी सही है, हाँ बिल्कुल। थिएटर का अपना एक अलग एक्सपीरियंस है, थिएटर का हाई अलग है, इसका हाई अलग है। या So I don't think it's fair to equate, both or pitch one against the other. या But having said so, I haven't done theater for the longest time now क्योंकि थिएटर की एक कमिटमेंट जो होती है कि हम्म come what may, the show must go हाँ on. So वो after the kids came, I got a little worried because I, as a person, I I don't like to carry baggage with me. हम्म और थिएटर करने के लिए आई आई डिडंट नो इफ आई हैड इनफ करेज टू शेड दैट बैगेज, क्योंकि कभी कहीं घर पे इमरजेंसी हो गई, बच्चे छोटे थे, उनको कहीं ज़रूरत पड़ गई, खेलते राइट हुए कोई गिर गया, कुछ हुआ, तो मैं फ़ोन पे बात भी नहीं कर पाऊँगी उनसे इफ आई एम ऑन स्टेज। राइट राइट या मैं शॉर्ट में ये तो कह सकती हूँ, 5 मिनट रुकिए, मैं अभी आ रही हूँ, आई जस्ट हैव टू मेक एन अर्जेंट कॉल, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स। At least I can speak home and I can at least, pacify my child if he or she is crying. तो वो मुझे बहुत डर लगने लगा तब कि मैं थिएटर अगर करूँगी तो मैं ये नहीं कर पाऊँगी, और तब से जो मैंने थिएटर नहीं किया है वो आज तक नहीं किया है। हम्म तो एक दैट इज अ बहुत वेरी ट्रू फियर फॉर एनी मॉम, कि आई हाँ, थिंक मदर बनने के बाद कुछ इंस्टिंक्ट्स आपकी बदल जाती हैं, योर फैमिली बिकम्स, जहाँ पहले आप अपने बारे में सिर्फ सोचते हैं, अब आपको 4 जनों के बारे में सोचना होता है, सो हाँ, एंड दैट इट्स इज द आई थिंक इट कम्स वेरी नेचुरली टू यू, यू डोंट हैव टू मेक एन एफर्ट। या आई आज भी अगर आप मुझसे पूछे तो मैं कहूँगी कि यार इफ माय चिल्ड्रन नीड मी, आई मीन दैट इज़ माय फर्स्ट प्रायोरिटी।
My career will always be my second priority. Yeah. तो अगर ऐसे में मैं थिएटर करती हूँ, तो अगर समझिए मैं प्रोड्यूसर हूँ और मैं किसी एक ऐसे एक्टर को कास्ट करती हूँ जिसकी पहली प्रायोरिटी अपना घर हो, तो मुझे नहीं अच्छा लगता. Right. Because I don't want my actors with baggage, you know. So why should I put some producer through it? So That's that's why I haven't done play for the longest time now. yeah. It's a big commitment, and I feel that now I'm back to it. मैंने भी जब बच्चे छोटे थे सब कुछ छोड़ दिया था, and like you know, full time mom, full time homemaker. I am, and I'm very proud of that. जबकि मेरे फ्रेंड्स you know कोई डायरेक्टर बन गया है, कोई you know कहाँ कहाँ पहुंच गए हैं. I don't know how they managed it. Home, work, and American lifestyle जहाँ आपको सब खुद करना पड़ता है. ऑल दो आपको सब सुविधाएं होती हैं, बट करना पड़ता है. कपड़े खुद धोने हैं, खुद सुखाने, सूख के आते हैं, चलो तय करने, आयरन करने, सब करना है अपना. एंड आई थिंक कोविड-19 ने सबको अमेरिकन लाइफस्टाइल लीड करने पे फोर्स किया, विच इज अ चैलेंज फॉर अ वुमन. एंड आई डोंट And नो more. व्हाई. आपने जैसे कहा कि क्यों हमें ये साबित करना है कि हम मल्टीटास्क है, क्यों क्यों सुपर वुमन बनना है. मैं So, मैं नहीं हूँ नॉर्मल सुपर ह्यूमन वुमन. बीइंग रहो. I'm just a normal human being. I'm born a woman. That's about it. उससे ज़्यादा मुझसे कुछ expect मत करो. Yes, I can have children because I'm a female, Right, but I'll exactly. look after them. I'll definitely love them more than any man can love them. Yes. उससे ज़्यादा मुझसे क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि मैं ये भी करूँगा, वो भी करूँगा, वो नहीं करना मुझे भाई. Yeah. And that's the attitude I think आजकल सबका होना चाहिए, you know, and not to push yourself to, you know, a limit where you break. I मैं ये भी नहीं कहूँगी because then we start becoming judgmental. Hmm. If the women can, there are some women who are excellent at हाँ. multitasking. No, let them do it. अगर उनको मजा आता है करने में, then they should do it. Yeah. I हमारे have घर friends who are में doctors, who are husband, wife, both doctors, and they're managing the house beautifully, raising kids beautifully. And I say, you know what? I envy you guys. How do you do this? मेरे yeah, से नहीं हो सकता. मुझसे नहीं हो सकता. I really admire these people, who can do 4 things at one time. My husband does that all the time. Mm-hmm. He does so many things at one time. मैंने उसको कितनी बार बोला है कि तुम्हारा दिमाग एक्सप्लोड हो जाएगा एक दिन, तुम्हारा इतनी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखते हो तुम. मैंने कहा वो रैम एक्सप्लोड हो जाएगा तुम्हारा. बट यू नो आई थिंक क्रिएटिव लोगों का यही प्रॉब्लम होती है, इतना सब भरा हुआ होता है ना, उनको निकालना होता है कहीं. उनके लिए ये अगर रिलीफ ना उनको मिले तो यू नो मेरे को जैसे मैं मोज़ेक करती हूँ, मैं सिंगिंग करती हूँ, मैं डांसिंग करती हूँ, एक्टिंग करती हूँ, सारे पूछते हैं हाउ डू यू मैनेज. आई डोंट मैनेज एनीथिंग, आई जस्ट डू व्हाटएवर आई फील लाइक. कुकिंग का दिल Yeah. किया तो कुकिंग किया, नहीं दिल किया तो नहीं किया. हाँ. एंड माय हस्बैंड नोज जब ये गाना गा रही है, एक्टिंग करने गई है, तो शायद खाना ना मिले. बाहर से कैरी आउट हो जाता है. So luckily I've, you know, a good understanding life partner helps a long way. But it was really, really nice chatting with you and Same here. talking to you about art. And thank you so much for your time. I know we were playing, you know, आपका time बहुत crucial है, and I understand there's so many things you have to do, but I really appreciate from bottom of my heart to Thank really you, Nitina. And connect not to with you. worry, I had kept an hour aside, so we're absolutely on I time. think Not to worry. हम आवर से ऊपर ही हो गए हैं, but That's all once right. again, thank you so much, and keep doing what you do, and keep singing to your plants, keep loving your pets. Because I think that's हमारे लिए, मुझे कोई पूछता है तो मैं ये कहती हूँ, हम क्रिएटिव लोगों के लिए एक्चुअली कोविड-19 कोई प्रॉब्लम नहीं है. मेरे को तो पता ही नहीं चल रहा है क्योंकि मैं हार्डली शॉपिंग के लिए जाती हूँ. आई डोंट वेस्ट माय टाइम शॉपिंग. इंडिया में बहुत शॉपिंग करती हूँ बिकॉज कुछ करने को ही नहीं होता. तो मेरे घर वाले कहते तू शॉपिंग करने आती है. मैंने कहा क्या करूँ, यहाँ कपड़े नहीं धोने, यहाँ खाना नहीं बनाना, तो शॉपिंग कर लो. बट आई थिंक कोविड-19 हम क्रिएटिव लोगों के लिए एक अच्छा टाइम है, जब हम लोग यू नो बहुत, ऑफ कोर्स स्टेज पे नहीं जा सकते, ये नहीं कहते बहुत बहुत अच्छा टाइम है, बट आई थिंक it's a good time for everybody to understand and reconnect and be with their families and understand each other a little more, right? So thank you once again. Thank you, and you keep doing your good creative work. Explore more and more of yourself. Yes, And hope to see some good theater from you soon.
आई as विल, आपको मैं लिंक as भेजूंगी अदालत जारी है का। मैं अभी हाँ, तक मिस बेनारे का जो पार्ट है उसको समझने की कोशिश कर रही हूँ, और कई बार होता है जब प्ले हो जाता है फिर मुझे लगता है ओ, ये पार्ट तो मैंने सोचा ही नहीं, ये एंगल तो मैंने सोचा ही नहीं। Savitri was something clicked to me, right? I think as a woman, as a, as a wife, as a mom, but Benare is a very different character, and I'm challenged, and I'm happy about that. But I'm working on it, so I'll good. keep doing whatever I can, and with God's blessing, and all of you as our role models. So thank you once again. Thank you, Nalina. Bye bye. See you. Bye. मैं इसको, ओके। Can I leave?